Welcome students, Gurinder Pal Singh here. In this video, we will start the chapter matrices. Basically, we will discuss about matrices and its types. Students, मैथ्स में matrices बहुत ही important tool है और इसकी properties की knowledge होना बहुत सारी fields में आपके लिए helpful हो सकती है. Students, matrices are not only being used for solving the system of simultaneous linear equations. Nowadays, it is also widely applied in various branches of science, engineering, economics, industrial management, etc. In this chapter, we will study introduction to matrices, types of matrices, operations on matrices, transpose of a matrix, inverse of a matrix by elementary operation. Let's start with the introduction to matrices. Let us suppose that you have to express Anil has 8 books. हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हम इसको इस तरीके से लिखकर एक्सप्रेस करेंगे विद द आइडिया दैट नंबर रिटन इनसाइड दिस ब्रैकेट इज द नंबर ऑफ बुक्स अनिल हैज. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस एक्सप्रेस दैट अनिल हैज 8 books and 6 pencils. We can express this as 8 6 with the idea that first number inside bracket is number of books and the second number is the number of pencils Anil has. Now students, suppose there are 3 boys, Anil, Akram and Manjeet. Anil has 9 books and 4 pencils. Akram has 4 books and 3 pencils, while Manjeet has 6 books and 5 pencils. Let us express the above statement in the form of matrix. First of all, we will express the information in tabular form like this. Now we write this as like. So students, हमने क्या information gather की, जो भी हमने देखा, इसमें हमने देखा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड रोज की जो एंट्रीज हैं वो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं. ऑब्जेक्ट मीन्स बुक्स एंड पेंसिल्स दैट आर पोजेस्ड बाय अनिल, अक्रम एंड मंजीत रिस्पेक्टिवली. फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज रिप्रेजेंट कर रही हैं बुक्स को, नंबर ऑफ बुक्स को, और सेकेंड कॉलम की एंट्रीज रिप्रेजेंट कर रही हैं नंबर ऑफ पेंसिल्स को. इसका मतलब जो थर्ड रो की एंट्री है और सेकेंड कॉलम की एंट्री है वो रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ पेंसिल्स पोजेस्ड बाय मंजीत. स्टूडेंट्स, सिमिलर इज द केस विद अदर आइटम्स. So students, the arrangement or display of above kind is called matrix. Order of matrix is m by n, where m is number of rows and n is number of columns. Now we will study the types of matrices. First one is row matrices. A matrices which has only one row called row matrices. स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही रो है, इसीलिए इसे रो मैट्रिक्स कहेंगे और इसका ऑर्डर होगा 1/3 क्योंकि इसमें एक रो है और 3 कॉलम है. सेकेंड टाइप इज कॉलम मैट्रिसेस. अ मैट्रिसेस विच हैज़ ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिसेस. क्योंकि इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे और इसका ऑर्डर होगा 3/1 क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और एक कॉलम है. Third type is square matrices. Number of rows and number of column is same. इस एग्जाम्पल में 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं, इसलिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दिया गया. नेक्स्ट वन इज नल मैट्रिसेस इन विच ऑल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 0. अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सारे एलिमेंट्स 0 हैं. इस नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है. Fifth type is identity matrices. A square matrices whose main diagonal value is 1 and each of other element is 0. For example, this is the example of 3/3 identity matrix. This is the example of 2/2 identity matrix. And this is the example of 1/1 identity matrix. If I'll talk about diagonal matrices, then a square matrices of all of whose element except those in the leading diagonal are 0. अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो लीडिंग डायगोनल के अलावा हर एलिमेंट 0 है, इसलिए हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं. नेक्स्ट टाइप इज स्केलर मैट्रिसेस. अ डायगोनल मैट्रिसेस इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल इज सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिसेस. इस एग्जाम्पल में जो मेन डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट्स सेम हैं, मतलब हर एक एलिमेंट की वैल्यूज 2 2 2, इसलिए हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं. नेक्स्ट टाइप इज ट्राइंगुलर मैट्रिसेस. दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर. In upper triangular matrix, all the below elements are 0.
अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर पिंक कलर का ट्राइंगल बना हुआ है, तो सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, इसलिए हम इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. एंड इन लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऑल द अबव एलिमेंट्स आर ज़ीरो. इस एग्जाम्पल में पिंक कलर का ट्राइंगल ऊपर बना हुआ है, तो इसके हर एक एलिमेंट ज़ीरो है, तो इसे हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. नेक्स्ट इज ट्रांसपोज मैट्रिसेस. A matrix is obtained by interchanging the rows and columns of a matrix. It is denoted by A dash or AT. ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, और अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो जो रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगे और जो कॉलम हैं वो रो बन जाएंगे. नेक्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस. अ स्क्वायर मैट्रिसेस A is called symmetric matrices if it is equal to its transpose. मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वही दोबारा सेम मैट्रिक्स बन जाती है, उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. मान लो हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं, और ट्रांसपोज करने के बाद जब हम माइनस उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं तो वही मैट्रिक्स दोबारा बन जाए, तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा. नेक्स्ट इज इक्वल मैट्रिसेस. इफ टू मैट्रिसेस ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज सेम, इट इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस. जैसे x एक 2x2 मैट्रिक्स है और y भी एक 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर जो है वो सेम है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो हम इसे इक्वल मैट्रिसेस कह सकते हैं. अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, तो जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होती हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज सेशन. होप you like this video. Subscribe my channel and press the bell icon button to get further notifications. Goodbye.